Hello students. So today we are going to discuss motion in a plane. Motion in a plane, we are going to discuss two topics in it. First is projectile motion and second is basically relative velocity. So at the end we will make one page of it. First of all we will go through the part which is 2D motion. 2D motion में हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पहले ही देख लिया था टॉपिक में, ठीक है. So first of all in 2D first we will discuss about the projectile motion in which topic is oblique projectile motion. Topic is oblique projectile motion. What is the meaning of oblique projectile motion? That means देखो इसमें कुछ हेवी क्वेश्चंस करने के लिए थोड़ा बेसिक फॉर्मूला कैसे डेराइव हुआ है वो चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स. सो इसीलिए डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, जस्ट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. सो हम जब क्वेश्चन पार्ट पे जाएंगे तो आपको आइडिया आएगा, ठीक है. सो देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, कॉन्सेप्ट क्या गिवन है यहाँ पे, मतलब सिचुएशन है कि सपोज दिस इज योर XY प्लेन and ball is thrown with the velocity of u at an angle theta with respect to ground. Okay, so ball is thrown at an angle theta with respect to u from ground, ठीक है. So it will follow a trajectory path. ये हमको पता है, it will follow a trajectory path. It will follow a path like this, ठीक है. So suppose at t second ये बॉल की पोजीशन होगी, that is px, y is a position of ball at t second. तो आप ये लिख सकते हो, यहाँ लिख दो let ball is thrown with the velocity of u at an angle theta with respect to ground and at t second its position is x, y, ठीक है. अब इस बॉल की x की वेलोसिटी कितनी है, that is u cos theta initially, and y की वेलोसिटी कितनी है, which is u sin theta initially. G is acting in downward direction, so downward direction is negative, ठीक है. Now first of all जो इसके अंदर हम लोग derive करेंगे that is about a trajectory equation. Trajectory equation. Now what is a trajectory equation? Trajectory equation basically जो होता है that is y equal to x tan theta minus half g x square upon u square cos square theta. This is your trajectory equation. Okay. Now what is the meaning of this trajectory equation? Once you throw a ball at an angle theta with respect to ground, it is going to follow a parabolic path. There is a projectile motion. ठीक है. So इस वाले में this is a trajectory equation. तो बॉल जो path follow करता है ये उसकी equation है, ठीक है. डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं इसमें, ध्यान रखना. डायरेक्टली मैं ट्रेजेक्टरी इक्वेशन लिख रहा हूँ. ट्रेजेक्टरी इक्वेशन बेसिकली कहाँ फाइंड आउट होता है उसको भी हम लोग आगे देखेंगे, क्वेश्चन में मैं बताऊंगा आपको. अभी जस्ट ट्रेजेक्टरी इक्वेशन लिख के रखना है. ट्रेजेक्टरी इक्वेशन में एक चीज ध्यान रखना, थीटा यहाँ पे जो थीटा है, यू है ना, और जी है, ये कांस्टेंट है. दे आर नॉट गोइंग टू चेंज. ओनली वेरिएबल इज एक्स एंड वाई. फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज डिफरेंट वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है. अलग अलग एक्स की वैल्यू के लिए वाई की डिफरेंट वैल्यू होगी, बिकॉज वंस बॉल इज थ्रोन इट्स यू कैन नॉट चेंज इनिशियल वेलोसिटी, यू कैन नॉट चेंज इनिशियल एंगल and g cannot be changed. So उसके अलावा सब कुछ मतलब constant. tan theta, theta is constant, g is constant, again theta, u is constant, half is constant. So only variable is x and y. So इसके questions कैसे होते हैं ये आगे देखते हैं. First you have to remember this trajectory equation. Means a path followed by a ball once it is thrown at an angle theta with respect to ground with the speed of u, ठीक है. Now और ये ध्यान रखना है वेलोसिटी u है तो इसकी x की वेलोसिटी u cos theta और y की वेलोसिटी u sin theta. As g is acting in downward direction, so x velocity always remains same. तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है. if suppose someone hit a ball at an angle theta with respect to ground, ठीक है, with the velocity of u. If one person has to catch a ball, suppose if batsman hit a ball at an angle theta with velocity u, and if fielder want to catch a ball, fielder has to run with the velocity of u cos theta to catch this ball. Fielder को कौन से velocity से run करना पड़ेगा, u cos theta. तो इसकी x की velocity हमेशा constant है. बॉल की y की velocity change हो रही है, देखो क्योंकि y में g है तो y में path ऐसा है, तो y की velocity बॉल ऐसे जाएगा y में और फिर वापस ऐसे आएगा. So y की velocity change होगी because y axis पे ग्रेविटी लग रही है, तो y की वेलोसिटी पहले कम होगी और फिर वापस मैग्नीट्यूड वाइज बढ़ेगी, ठीक है.
सेकंड इसमें जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज अबाउट द टाइम ऑफ फ्लाइट. यू हैव टू कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट. सो टाइम ऑफ फ्लाइट की जो इक्वेशन है, देखो ध्यान रखना, टोटल मोशन हमको चेक करना है फ्रॉम ओवरऑल मोशन, सेम वे जैसे 1D में किया था. सिर्फ आप कॉन्सेप्ट याद रखना, यू हैव टू यूज, वहां पे कौन सी इक्वेशन यूज की थी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यहाँ पे भी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करना है फॉर y एक्सिस मोशन ओनली, फॉर y एक्सिस मोशन. ध्यान रखना, यहाँ पे जो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेपरेटली पढ़ेंगे. x axis motion is completely the case of constant velocity and y axis is a case of constant acceleration because g y axis पे लग रहा है. तो x axis motion is a case of constant velocity where a is not acting, acceleration is not acting, and y axis is the case of constant acceleration. ठीक है ना. तो आप ये इक्वेशन y axis motion के लिए देखोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए ध्यान रखना. ठीक है. सो y की डिस्प्लेसमेंट, y की इनिशियल वेलोसिटी और y का एक्सेलरेशन. सो बॉल यहां से यहां पे गया तो y में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0, बिकॉज y में इनिशियली यहां पे था और फाइनली बॉल यहां पे है, तो y में तो डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ ना. बॉल तो ऐसे गया, लेकिन y का मोशन देखो उसका, y में मेरा लेफ्ट हैंड बता रहा है उसका मोशन, ऊपर गया और फिर वापस नीचे आया, तो y में डिस्प्लेसमेंट 0. तो अगर आप इसमें ऐसा सॉल्व करते हो, y की इनिशियल y में सपोज उसका डिस्प्लेसमेंट 0, y की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, अपवर्ड डायरेक्शन, तो प्लस u साइन थीटा, t निकालना है, g नेगेटिव, t स्क्वायर, तो आपका आंसर आ जाएगा 2u साइन थीटा बाय g. तो ये आपका रिस्पेक्टिव आंसर आएगा 2u साइन थीटा बाय g. थीटा को 90 पुट कर दो, 1D वाला आंसर आ जाएगा 2u बाय g. समझ में क्लियर. सो इस तरीके से क्यों पढ़ना है आपको आगे मैं समझाता हूँ, बट ये चीज याद रखना. ठीक है ना. क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, टिपिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन आई कैसे. ठीक है. तो ये आपकी टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाता है. नाउ थर्ड जो हम लोग डिराइव करते हैं फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज अबाउट रेंज. रेंज के लिए हम एक्स एक्सिस मोशन देखते हैं. एक्स एक्सिस मोशन इज अ केस ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी. ठीक है ना. सो एक्स का जो डिस्प्लेसमेंट, रेंज मतलब यहां से यहां पे. ठीक है. सो एक्स में एक्स एक्सिस मोशन में डिस्प्लेसमेंट इज v इंटू टी, बिकॉज कांस्टेंट वेलोसिटी अगर होगी तो डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम ओनली. बॉल यहां था, यहां से यहां चला गया, तो इसको अपन ने रेंज बोल दिया r. ठीक है. x की वेलोसिटी कितनी है बताओ, u cos थीटा, और टाइम यहां पे डिराइव कर लिया 2u sin थीटा बाय g. इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आता है, दिस विल बिकम u स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा बाय g. सो दिस इज बेसिकली योर रेंज फॉर्मूला. ये आपकी रेंज की फॉर्मूला आ गई. ठीक है. सो इसको लिख लो. ये फॉर्मूला में मैं आपको 2-3 केस बता देता हूँ. देखो रेंज के अंदर जो जो आपको लिखना है, सो आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है. अब देखो इसके अंदर हम केस लिखते हैं. थर्ड क्वेश्चन इसी के अंदर हम केस लिखेंगे. ध्यान रखना, थर्ड के अंदर ही केस 1 फर्स्ट, इसी का पार्ट रेंज मतलब वंस यू थ्रो अ बॉल. इसमें देखो, अब अगर आपने ये बॉल को u की स्पीड से थ्रो किया है, ठीक है, अब आपकी कैपेसिटी u की स्पीड है, तो कौन से डिफरेंट एंगल पे आप थ्रो करोगे कि रेंज मैक्सिमम हो. फॉर मैक्सिमम रेंज फॉर गिवन u का मतलब योर u इज कांस्टेंट, यू आर नॉट गोइंग टू चेंज योर वेलोसिटी और यू आर नॉट गोइंग टू चेंज योर स्पीड. मींस इफ सपोज योर थ्रोइंग कैपेसिटी इज 20 मीटर पर सेकंड, आप 20 की स्पीड से ज्यादा थ्रो ही नहीं कर सकते, तो अलग अलग एंगल पे आप थ्रो कर रहे हो. ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो कौन से एंगल पे थ्रो करोगे कि रेंज मैक्सिमम होगा. सो रेंज इज मैक्सिमम व्हेन sin थीटा इज मैक्सिमम. sin की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, sin की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है. sin 90 is 1, sin 90 is equal to sin 2 theta, so 2 theta comes out to be 90, so theta is 45 degree. So range is maximum, याद रखना है, when theta is 45 and answer comes out to be u square by g. तो ये आपका आंसर आता है when range is maximum. ठीक है. नाउ नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चंस ही हैं, याद रखना. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है खासकर जो आपको रेंज में पूछते हैं, सपोज you have thrown a ball at an angle theta with respect to ground with the velocity of u, and another ball ये थीटा एंगल से थ्रो किया. ठीक है.
इसको आपने थीटा एंगल से थ्रो किया, और अनदर बॉल को ग्राउंड से u की वेलोसिटी से ही थ्रो किया है, बट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे, मतलब 90 माइनस थीटा पे. Two balls are thrown. Suppose one ball is thrown at an angle theta with speed of u, and another is thrown at an angle 90 minus theta with the speed of u. तो उस समय जब आप इस फॉर्मूला में वैल्यू डालते हो तो r1 इक्वल टू r2 आता है. मीन्स रेंज वन, फर्स्ट बॉल का जो रेंज होगा और सेकेंड बॉल का जो रेंज होगा, दोनों के रेंज क्या होंगे, सेम होंगे. मतलब इसका भी रेंज जितना होगा और इन दोनों का रेंज क्या होगा, सेम होगा. तो ये आंसर आपको याद रखना है, ध्यान रखना है. ये सब क्वेश्चंस हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इनको सॉल्व नहीं करना, आंसर याद रखना है. सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आंसर. जब 11th में होते थे तो सॉल्व करते थे, अब तो याद ही रखना है आपको. यहाँ पे अगर थीटा पुट करते हो तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और 19 माइनस थीटा पुट करोगे तो भी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी ही आएगा. इसी केस में देखो, एक ने ज्यादा ट्रेजेक्ट्री ली और एक ने कम ट्रेजेक्ट्री ली, तो दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट अलग होंगे. तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. सेकंड में ही लिखता हूँ. फर्स्ट का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, देखो फर्स्ट का टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2u, फर्स्ट बॉल जो थीटा से थ्रो किया है, 2u साइन थीटा बाय जी, और सेकंड वाले का क्या होगा, 2u साइन 90 माइनस थीटा बाय जी, बराबर. तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा. तो अगर t1 बाय t2 करोगे तो ये साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब ये क्या आ जाएगा, टेन थीटा. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है. और t1 इंटू t2 करके बहुत बार कंपेटिटिव एग्जाम में पूछा, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ टाइम है तो वो क्या आ जाएगा, 2r बाय g आ जाएगा. तो इस क्वेश्चन के अंदर काफी सारे इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चंस हैं. आपको ऐसा पूछ सकते हैं, बॉल इज थ्रोन एट अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सुनना ध्यान से, विद सेम स्पीड, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ फर्स्ट बॉल इज 6 सेकेंड, सेकेंड इज 4 सेकेंड, फाइंड आउट रेंज. 6 इंटू 4 24 इंटू 10 240 बाई 2 120, रेंज इज 120. नहीं तो आप क्वेश्चन में ही उलझते रहोगे. अच्छा रेंज की फॉर्मूला में पुट करो, ऐसे नहीं करना, ये सब शॉर्ट ट्रिक्स आनी चाहिए. ठीक है. टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ फर्स्ट बॉल इज 4 सेकेंड, सेकेंड इज 2 सेकेंड, व्हाट इज एंगल, t1 बाई t2 इज इक्वल टू 10 थीटा, 10 थीटा इज, आंसर आ गया आपका. समझ में आई बात आपको, क्लियर. तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, समझ में आ रहा होगा आपको. रेंज में ये रेंज की फॉर्मूला डिराइव कैसे होती है वो याद रखना है, क्यों वो आगे हम बताएंगे. जस्ट सिंपल, रेंज के लिए एक्स एक्सिस मोशन देखना है. एक्स एक्सिस मोशन इज द केस ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड वाई एक्सिस मोशन इज द केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. सो फॉर this time of flight we always use this equation, but we are using this for y axis motion, so y आंसर आ गया. ठीक है स्टूडेंट्स, इसको लिख लो, फिर मैं आगे और बताता हूँ. नोट इट डाउन. अब देखो, रेंज के सारे केसेस हमने देख लिए, रेंज के केसेस देखे. अब हम लोग देखेंगे मैक्सिमम हाइट, विच इज आई थिंक फोर्थ वन ना. फर्स्ट वाज ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, सेकंड वाज योर टाइम ऑफ फ्लाइट, नाउ थर्ड वाज रेंज, नाउ फोर्थ इज मैक्सिमम हाइट. What is the maximum height attained by this ball? So देखो, मैक्सिमम हाइट यहां से यहां तक का होगा, ये मैक्सिमम हाइट है. ठीक है. मैक्सिमम हाइट के लिए जो आप इक्वेशन यूज करोगे, दैट इज यू यूज y एक्सिस मोशन लेंगे. y एक्सिस मोशन एंड वी यूज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, जैसे 1D में किया था मैक्सिमम हाइट. व्हाट इज y वेलोसिटी, फाइनली हाइट मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो y पे जाना बंद हो जाएगा, सो y वेलोसिटी इज 0. ठीक है. इनिशियल x एक्सिस वेलोसिटी इज u sin थीटा the whole square, your g is negative and h maximum. इनिशियली यहाँ पे, फाइनली यहाँ पे, तो y एक्सिस में अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट हुआ है. आपका जो आंसर आएगा that comes out to be u square sin square theta by 2g. So ये आपका मैक्सिमम हाइट आ गया. देखो थीटा को 90 पुट करो, आंसर आ जाएगा 1D वाला, बिकॉज थीटा 90 तो 1D मोशन हो गया, अपवर्ड फ्लो किया डायरेक्टली, तो u square by 2g आ गया. ठीक है. अब इसमें देखो क्या क्या केसेस पूछते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल आएंगे, केसेस देखते हैं. देखो पहला, सब आंसर याद होने चाहिए इसके, ध्यान रखना. फर्स्ट, इफ r is maximum, find h maximum. अगर रेंज आपका मैक्सिमम है तो रेंज मैक्सिमम कब होता है बताओ.
when theta is 45 डिग्री, that means r is u square by g. तो h maximum कितना हो जाएगा? h maximum होगा, देखो यहाँ पे sin 45 हो जाएगा, तो sin स्क्वायर 45 होगा, तो u स्क्वायर बाय sin स्क्वायर 40, sin 45 कितना होता है 1/√2, तो sin स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2. So this answer comes out to be u square by 4g, means this comes out to be r max by 4. So h max is r max by 4 if range is maximum, means if ball is thrown at an angle of 45 degree then range is maximum. अब क्वेश्चन समझना, कभी कभी क्या होता है पता है, आपको एंगल नहीं देते क्वेश्चन में, ऐसे ही बोलते हैं रेंज इज मैक्सिमम. व्हेनेवर इट इज गिवन इन क्वेश्चन दैट रेंज इज मैक्सिमम, थीटा इज 45 डिग्री ओनली. ठीक है. अब अगर ऐसा पूछा है मैक्सिमम रेंज इज 100 मीटर, सुनना, तो व्हाट इज मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल? 100/4 25. If maximum range is 100 meter, what is the maximum height? 100/4 25 meter. हो गया आंसर, आ गया. सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, समझ में आया? तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा. ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. दूसरा इसके अंदर जो केस आता है, जो इंपॉर्टेंट है कि रेंज और हाइट कब इक्वल होंगे. मीन्स आपने बॉल को ऐसे थ्रो किया है कि उसका जितना रेंज है और उसका जो मैक्सिमम हाइट है वो भी उसी के जितना है, दोनों इक्वल है. तो कुछ नहीं करना, आप r की फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करते हैं, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, h इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और सॉल्व करते हैं तो tan थीटा की वैल्यू 4 आती है, तो थीटा कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 4 which is approximately equal to 76 degree. So whenever you throw a ball at an angle of 76 degree, maximum height attained by the ball is also equal to range. समझ में आई बात आपको? तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, नोट डाउन कर लो इसको. ठीक है, फिर इसको लिख लो. तो ये रेंज हो गया, मैक्सिमम हाइट हो गया, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको, नोट डाउन कर लो. नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला जो है काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज अगेन ऑफ इंस्टेंटेनियस velocity. What is the velocity at each and every time is changing? x की velocity चेंज नहीं हो रही है, बट y की velocity से चेंज हो रही है. कोई भी कर्व्ड पाथ के लिए, for any curved path, any instant velocity is tangent to the curve. So it has two component, one x component and another is y component. ठीक है ना? So ध्यान रखना, velocity has two component, instantaneous velocity has two component. तो याद कैसे रखना है वो कॉन्सेप्ट समझाता हूँ. One is x velocity and another is y velocity if we write down in a vector form. So v, any instant velocity, x velocity is not changing. क्यों x की velocity change नहीं हो रही है? Because g downward direction में act हो रहा है, x axis में कोई भी acceleration act नहीं हो रहा है. So x की velocity constant है, means u cos theta is constant. So x velocity is u cos theta which is constant. So it is not going to change. Magnitude is u cos theta and direction is I cap. हो गया vx. सिंपल याद करने का तरीका. y की velocity, as y axis is the case of motion under the gravity. So what is the velocity formula for y axis? v equal to u plus at. तो यहाँ ऐसा लिखो, देखो v equal to u plus at. तो v तो लिखा ही हुआ है, तो u plus at लिखना है अपन को. देखो समझ में आया ना? v equal to u plus at. तो u plus at because y axis is the motion of a constant acceleration into j cap. y axis की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? देखो फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा. y की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? ये y की इनिशियल वेलोसिटी और y का एक्सेलरेशन. y की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बोलो? u sin थीटा. y का एक्सेलरेशन कितना है? g minus g t j cap. होपफुली आपको ये याद हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. सिंपल. तो तेरी ऐसे नहीं कि रटो, इजीली याद कर रखो. आपको पता है whenever you throw a ball at an angle theta, x velocity is u cos theta, y velocity is u sin theta. Simple. तो any instant velocity आ गया. So instantaneous angle भी आ जाएगा. What is the angle? कोई भी instant पे angle of projectile पूछा हो, so it is, suppose वो angle को मैं alpha लिख देता हूँ. Instantaneous angle is alpha. So tan alpha, as this is 2d, this upon this means vy by vx, which is u sin theta minus gt upon u cos theta. तो ये इंस्टेंटेनियस एंगल आ गया आपके पास. ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा इंस्टेंटेनियस एंगल. सो
ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखनी है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट केस आता है, देखो जब आप बॉल को थ्रो करते हो, यहाँ पे मैं एक फिगर बनाता हूँ, जैसे कि एक इसी फिगर में अगर अपन चेंज कर दें, यहाँ पे बना देता हूँ एक केस, जैसे ये ट्रेजेक्ट्री पाथ है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये आंसर याद रखना है आपको, डेराइव भी कर सकते हैं बट याद रखना है। ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर वाइज एंगल थीटा, और ये एक इंस्टेंटेनियस एनी इंस्टेंट वेलोसिटी v। तो एक ऐसा पॉइंट होगा जब एनी इंस्टेंट वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। एनी इंस्टेंट वेलोसिटी, एक केस लिखता हूं, that any instant velocity is perpendicular to initial velocity। वो टाइम क्या होगा? What is that time when any instant velocity is perpendicular to initial velocity? So you know that whenever two vectors are perpendicular to each other, that dot product is zero। तो आप अगर v dot u जीरो करोगे तो वो टाइम आ जाएगा। v क्या है आपके पास? आपके पास v ये दिया हुआ है, u v आपके पास लिखा हुआ है, u क्या होगा? u can be written as any instant initial velocity, u can be written in a vector form u cos theta I cap plus u sin theta j cap। दिस इज, तो ये v डॉट u करोगे तो आंसर आ जाएगा, वो आंसर आएगा t इक्वल टू u अपॉन g sin theta। You have to cram this formula that after how much time any instant velocity is perpendicular to the initial velocity, answer comes out to be u upon g sin theta। so ये सब formulas हैं, ये याद रखना है आपको। ये क्वेश्चन ये ध्यान रखना है, ऐसे ये क्वेश्चन खासकर ये एंगल में मैंने क्यों पूछा है, आपको कोई भी इंस्टेंट पे स्पीड पूछ सकते हैं। जैसे मैं मेरी बात समझना, आपको बोलेंगे बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद अ स्पीड ऑफ सपोज 40, ये 40, ये 40, आफ्टर 5 सेकेंड ये 5, व्हाट इज स्पीड ऑफ बॉल? ये आ गया, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया तो स्पीड पता चल गया। ठीक है, समझ में आई बात आपको? या तो आपको ऐसा पूछेंगे बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यहाँ 30 30, आफ्टर 4 सेकेंड ये 4, व्हाट इज एन एंगल ऑफ दैट बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और व्हाट इज द एंगल इट इज मेकिंग विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये एंगल आ गया। तो सिंपल ये सब फॉर्मूलाज याद रखनी है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आप इसको नोट डाउन कर लो। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये जो बेसिक मैंने आपको बताया, जैसे ट्रेजेक्ट्री इक्वेशंस, रेंज, मैक्सिमम हाइट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखा, इनके अंदर केसेस भी देखे, वो सारे आपको याद करने हैं। अब जैसे मैंने आपको एक ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन का इक्वेशन दिखाई थी, व्हाट वाज द ट्रेजेक्ट्री, तो एक एग्जांपल में बताता हूँ ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन के यूज के लिए कि ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन कहाँ पे यूज होती है। बेसिकली व्हाट इज एन ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन, ठीक है ना। बाकी जितने भी अंदर सब क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिया, और फॉर्मूला याद रखनी है, सबके केसेस भी बता दिए, तो कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो भी आपको पता चल गए। खासकर ट्रेजेक्ट्री इक्वेशंस देखते हैं। देखो ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन क्या लिखाई थी मैंने, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन है ये बेसिकली कहाँ कहाँ यूज होती है? एक तो खासकर ऐसे क्वेश्चन में यूज होंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल टू कंपेयर, ध्यान रखना मैं ऐसे लिखा रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए कि कहाँ यूज होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज यूज टू कंपेयर। जैसे कि आपको इस तरीके से दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान रखना क्वेश्चन में आपको ऐसा गिवन है, एक इक्वेशन दे दी है ट्रेजेक्ट्री, जैसे y इक्वल टू सपोज 16x माइनस 5x रेज टू 4 5x स्क्वायर बाय 4 फॉर एग्जांपल। फेमस रिलेशन एग्जाम में आया हुआ है इसलिए मेरे को याद है, ये मैंने आपको लिखा है y इक्वल टू 16x माइनस 5x स्क्वायर रेज टू 4। सो ये आपको पता चल गया ये ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन है, तो आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो tan थीटा कितना हो जाएगा कंपेयरिंग से, tan थीटा आपके पास 16 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद और क्या हो जाएगा, देखो 5/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है हाफ इंटू जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप इस पे से देखो u भी निकल, tan थीटा पता चल गया तो cos थीटा पता चल जाएगा। कैसे cos थीटा पता चलेगा, ध्यान देना,
टेन थीटा पता है, तो टेन थीटा 16 है, 16/1, तो ये क्या हो जाएगा पाइथागोरस से 16 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ, तो उस पे से कॉस थीटा भी पता चल जाएगा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा एडजेक्शन अपॉन हाइपोटेनियस, और उसका स्क्वायर है यहाँ पे, उस पे से आपको u मिल जाएगा। तो ऐसी सब चीजें निकाल सकते हो आप, ठीक है ना, क्लियर, ओके। क्योंकि टेन थीटा से कॉस थीटा आप निकाल सकते हो, आपको ये आता है निकालना। तो देखो एक इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कंपेयर करके आप वैल्यूज निकाल सकते हो। दूसरा, सपोज आपको फॉर एग्जांपल ऐसी इक्वेशन दी है, दूसरा जैसे एक सिंपल इक्वेशन मैं आपके सामने लिखता हूँ, जैसे 4x माइनस सॉरी जैसे 16x माइनस 4x स्क्वायर, ऐसा दे दिया। अगेन आपको क्लिक हो जाना चाहिए, प्रोजेक्टाइल इक्वेशन है, ठीक है ना, और बोला है कि रेंज फाइंड करो। तो रेंज फाइंड करने में भी यूज होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको इसके साथ कंपेयर करके बहुत सारी यू निकालते हैं, थीटा निकालते हैं, फिर रेंज की फॉर्मूला में डालते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी में डालते हैं। ऐसा नहीं करने का। जब रेंज निकालते हो आप, तो फाइनली इस पॉइंट पे y 0 होता है, पुट कर दो y इक्वल टू 0, तो आपको रेंज मिल जाएगा। सिंपल y 0 पुट करो, 16x माइनस 4x स्क्वायर, सो 16x इक्वल टू 4x स्क्वायर, एक x कैंसिल आउट हो गया, तो x कम्स आउट टू बी 6, कितना हो जाएगा ये, एक x कट हो जाएगा, तो बराबर ना, दिस कम्स आउट टू बी 4, ठीक है ना, 16/4, सो रेंज कम्स आउट टू बी 4। कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया, समझ में आई बात आपको। तो कभी भी ट्रेजेक्टरी इक्वेशन दी और रेंज फाइंड आउट करना है तो y को 0 पुट कर दो। दूसरा जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं एक वॉल क्वेश्चन, वॉल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, वॉल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना, सिंपल से होते हैं। देखो वॉल बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, सपोज मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बहुत सारे केसेस, अपन इतने सारे क्वेश्चन से अच्छा कॉन्सेप्ट याद कर लो, बहुत सिंपल है। देखो होगा क्या, एक बॉल को प्रोजेक्ट किया है, यहां से ऐसे प्रोजेक्ट किया है कि उसने जस्ट वॉल को क्रॉस किया, बॉल ने क्या किया, वॉल को जस्ट क्रॉस किया। अब आपको क्या किया होगा पता है, वॉल कितनी दूर है वो x गिवन होगा, वॉल की हाइट कितनी है वो y हो गई। तो जब बॉल यहां से क्रॉस कर रहा है, बॉल को जस्ट वॉल को क्रॉस करना है, समझ में आई ना बात आपको, तो आपको पॉइंट पता चल गया, ये कोऑर्डिनेट पता चल गया, x पता, ये आपको दिया होगा। फॉर एग्जांपल ये आपको 4 मीटर दिया है, फॉर एग्जांपल ये आपको 6 मीटर दिया है। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि u आपको गिवन है और थीटा निकालना है, ठीक है। सो देखो कितनी सारी वैल्यू हो गई, आपको बोला होगा कि जहां से बॉल को थ्रो कर रहे हो वो कितनी दूर है, तो x पता चल गया, कितने हाइट का वॉल है y पता चल गया, आपको थीटा दिया होगा, या तो u निकालना होगा या u दिया होगा थीटा निकालना होगा। समझ में आई बात आपको। तो ऐसे वॉल बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे ये 3 जगह पे ये ट्रेजेक्टरी इक्वेशंस खासकर यूज होती है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से होता है, इसको नोट डाउन कर लो ये क्वेश्चन को। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट जो है दैट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो इसमें सिचुएशन क्या गिवन है, यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का, इसकी भी सारे आंसर याद होने चाहिए। देखो अपन ट्राई करते हैं याद करने का। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सपोज एक बिल्डिंग ऑफ हाइट h है, यहां से एक बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया विद द स्पीड ऑफ u, हॉरिजॉन्टली थ्रो, सो इट विल अगेन फॉलो अ ट्रेजेक्टरी पाथ एंड इट विल गोइंग टू हिट अ ग्राउंड एट, दिस इज अ रेंज बेसिकली व्हिच इज योर x, ओके। सो इसमें सबसे फर्स्ट जैसे ध्यान रखना, वहां पे क्या निकाला था, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी इसको डिराइव नहीं करता, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। वहां पे क्या था, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो याद कैसे करोगे, tan थीटा को 0 पुट कर दो, वहां थीटा को 0 पुट कर दो, थीटा को 0 पुट करोगे तो x tan थीटा, tan 0 इज 0, तो 0, फिर माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0, 1, आंसर आ गया। ये इसकी ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, कितना इजी है इसकी ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, समझ में आई बात आपको। ये इसकी ट्रेजेक्टरी इक्वेशन हो गई। सेकंड,
वहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था, यहाँ पे भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट सेम वही कॉन्सेप्ट से निकालेंगे, y एक्सिस मोशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, लेकिन इसका जो आंसर आएगा और y एक्सिस मोशन uyt प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट बॉल यहाँ है, फाइनली यहाँ चला गया, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ है, तो माइनस एच, y की वेलोसिटी है ही नहीं बिकॉज x में थ्रो किया है, तो इनिशियल y की कोई वेलोसिटी नहीं है, तो जीरो, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, आपका देखो टाइम क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी, नोन टाइम आया है ये, 1D में भी आया था। तो क्वेश्चन आता है, one ball is dropped from building of height h, another ball is thrown horizontally from the building of height h with some any velocity, this time of flight is independent of velocity, so if one ball is thrown, अब ऐसा क्वेश्चन है, one ball is dropped and another ball is thrown horizontally with the speed of 100 meter per second, which ball will reach ground first, both will reach simultaneously, समझ में आया। आप कोई भी वेलोसिटी से थ्रो करो, इट डजंट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी, सो ये है टाइम ऑफ फ्लाइट, ध्यान रखना टाइम ऑफ फ्लाइट में यू आया ही नहीं। सो एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम बिल्डिंग ऑफ हाइट एच एंड एट अ सेम इंस्टेंट a gun is fired, a bullet is fired from a gun with velocity of suppose 1000 meter per second, so which ball or bullet which will reach ground first, both will reach simultaneously because time of flight is same, so hopefully ये भी आपको समझ में आ गया, याद रख लेना इसको, टाइम ऑफ फ्लाइट इसका 1D जैसे ही होता है, ड्रॉपिंग वाला केस। थर्ड इसमें आता है रेंज, सो रेंज कैसे याद रखोगे, एक्स एक्सिस मोशन लोगे, एक्स की वेलोसिटी इनटू टाइम, एक्स की वेलोसिटी क्या है जो चेंज होने नहीं वाली u, और टाइम क्या आया अंडर रूट ऑफ 2h बाय जी, आंसर आ गया रेंज का, कितना सिंपल है, ठीक है। और फोर्थ एनी इंस्टेंट वेलोसिटी, तो कैसे डिराइव किया था वहां पे, vx i कैप एंड vy j कैप, x की वेलोसिटी क्या है u, y की वेलोसिटी क्या होगा बोलो uy प्लस ay इंटू टी जे कैप, याद कैसे ऐसे ही करना है, सो v कैन बी रिटन एज uy कैप, uy इनिशियली इज 0 माइनस gt j कैप, सो दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्लियर। अब इसमें अगर कोई भी इंस्टेंट की वेलोसिटी या स्पीड पूछी है तो वो टाइम दिया होगा, सब्स्टिट्यूट करो आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा इसके खासकर जो क्वेश्चंस आते हैं, खासकर आते हैं फाइटर प्लेन इज मूविंग एट सम हाइट, अ फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट, ठीक है ना, तो उस हाइट पे एंड फाइटर जो फाइटर प्लेन होगा उसमें से जो ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाले प्लेन होते हैं उसमें से कुछ फूड पैकेट को ड्रॉप किया, प्लेन इज मूविंग विद सपोज 300 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल, या इस हिसाब से उसकी स्पीड दी गई है, हाइट दी गई है, तो कहाँ पे जाके वो फूड पैकेट गिरेगा, तो फूड पैकेट विल फॉलो अ ट्रेजेक्टरी पाथ, समझ में आई बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो ये प्लेन ऐसे जा रहा है 300 की स्पीड से, तो x की भी स्पीड उतनी ही होगी, उसकी x की वेलोसिटी भी स्पीड इतनी होगी, तो जब फूड पैकेट नीचे गिरेगा तो प्लेन एग्जैक्टली उस समय उसके ऊपर होगा उस समय, समझ में आई बात आपको स्टूडेंट्स। सो देखो यहाँ से अगर जब वो ड्रॉप करेगा तो दैट फूड पैकेट विल फॉलो अ ट्रेजेक्टरी पाथ एंड इट, उसका रेंज ड्रॉपिंग के बाद रेंज कितना है, आंसर आ गया, ठीक है। सो ये ध्यान रखना आप लोग इस केस को, बहुत सिंपल है, ठीक है। और अगर मान लो आपको इसमें उस फूड पैकेट का डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट व्हिच कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट फूड पैकेट बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सो ये आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन भी कंप्लीट हो गया, इसमें यही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना ये फूड पैकेट ड्रॉप के, और खासकर ये जो मैंने आपको बताया टाइम ऑफ फ्लाइट के, टाइम ऑफ फ्लाइट ड्रॉपिंग का और हॉरिजॉन्टल थ्रो का सेम होता है, लिख लो इसे। अब देखो बच्चों, अब हम लोग एक टिपिकल एग्जांपल देखते हैं, देखो इसीलिए मैंने आपको बताया थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। एग्जांपल ऐसा है, बॉल इज थ्रोन, जैसे हम लोगों ने उसमें देखा था 1D में, बॉल इज थ्रोन अप फ्रॉम द बिल्डिंग ऑफ हाइट h विद द स्पीड ऑफ 20, तो सेम एग्जांपल हम लेते हैं, बॉल इज थ्रोन with speed of 20 meter per second from height of building 90 meter at an angle of 30 degree, okay, at an angle of 30 degree। देखो अब ये बता रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन, find time of flight
एंड रेंज, अगर सपोज आपको ऐसा पूछे। बाकी सब आंसर आपको निकालने आएंगे। तो देखो किस तरीके से करना है क्वेश्चन। सिचुएशन क्या दिया है, दिस इज द बिल्डिंग ऑफ हाइट 90 मीटर। From this building, a ball is thrown at an angle of 30 degree, okay, with speed of 20. So it will follow a path like this. So this is not a case of horizontal as well as oblique. Oblique में नीचे से थ्रो करते थे, horizontal में ऐसे horizontally थ्रो करते हैं। तो इसको आपको कैसे करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट कराया था मैंने आपको। तो इसकी दो वेलोसिटी है, एक x की which is 20 cos 30 और एक y की which is 20 sin 30। हो गई दो वेलोसिटी। सो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम क्या करते हैं बताओ। फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या बताया था कॉन्सेप्ट मैंने, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए y एक्सिस इक्वेशन यूज करेंगे, y एक्सिस मोशन, एंड यू हैव टू यूज इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखो 1D 2D सब सेम ही चल रहा है, उसी टाइप की इक्वेशंस है वही। इनिशियली बॉल यहाँ है, फाइनली यहाँ है, बट y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है -90। y की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, अपवर्ड डायरेक्शन में कितना है 20 sin 30। टाइम निकालना है, g नेगेटिव है मींस -10 लिख दिया इंटू टी स्क्वायर, हो गया ये। -90 इक्वल टू sin 30 इज हाफ, sin 30 है 10t माइनस 5t स्क्वायर, सो 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 90 इक्वल टू 0। सो t स्क्वायर माइनस 2t माइनस कितना हो जाएगा 18 इक्वल टू 0। So with the help of quadratic equation you can now find out the time of flight which comes out to be 2 plus और माइनस तो होगा नहीं क्योंकि ब्रैकेट के अंदर बड़ा होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इंटू 18 बाय 2। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया आपका। दिस कम्स आउट टू बी 18 4 18 2 30 72 72 प्लस 4 इज 76 ना, 36 हाँ 72 प्लस 4 इज √76/2। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, अराउंड 8.5 होगा कुछ, ठीक है ना, 8.5 ही होगा ना। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो 8.5 8.7 8.5 प्लस 2 इज 10.5/2 इज 5.2555। इससे कुछ आंसर आ गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। सो इसके बाद अगर आपको रेंज पूछा हो तो रेंज कैसे करेंगे, vx इंटू टी। x की वेलोसिटी कितनी है बताओ 20 cos 30 और टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ गया। समझ में आया। तो इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए अगर ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तो। क्लियर स्टूडेंट्स, लिख लो इसे, नोट डाउन कर लो। और सेम वे अगर ध्यान रखना, अगर ऐसे ही बिल्डिंग के ऊपर से बॉल को ऐसे थ्रो किया है डाउन ऐसे 30 डिग्री इस तरीके से विद द स्पीड ऑफ 20, तो आप उस समय x की वेलोसिटी क्या लोगे 20 cos 30 और y की यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा 20 sin 30। तो इसमें क्या चेंज होगा, इसमें भी ये पैराबोलिक पाथ ही फॉलो करेगा, लेकिन इसमें चेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पे -20 sin 30 रखना है, दैट्स इट। बाकी आंसर्स तो सेम आएंगे, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट, सो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। रेंज भी निकाल लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल लिया। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए थोड़ा बेसिक याद रखना है आपको कि कैसे आंसर आता है, और फॉर्मूला सारे उसकी याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये अपना प्रोजेक्टाइल मोशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हो गए, थियरी पूरी हो गई कंप्लीट, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसे। नाउ स्टूडेंट्स, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D में दो टाइप के एग्जांपल खासकर आते हैं। इसमें थियरी तो वही है जो हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज VAB इक्वल टू VA माइनस VB। इसमें ये आपका ऑब्जर्वर है और A आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, 1D में जो पढ़ा था। थियरी तो वैसे ही है। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक रिवर बोट एक मैन और रेन प्रॉब्लम और एक रिवर बोट प्रॉब्लम। सो देखो सबसे पहले हम इसमें सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्रिक होना चाहिए। एग्जाम्पल हम लेते हैं, सीधा एग्जाम्पल से स्टार्ट होता है बिकॉज थियरी तो इतना ही है। सपोज हम लोग लेते हैं रेन मैन प्रॉब्लम,
इसमें क्या होता है, सपोज रेन इज फॉलिंग at angle suppose sorry एंगल वाला बाद में बताते हैं, पहले मैं डायरेक्टली बताता हूँ। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये सिचुएशन गिवन है आपको। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट मीन्स ये वेलोसिटी ऑफ रेन है which is in vertically downward direction, which is VR. So suppose अपन downward direction को for example j cap minus j cap ले लें, so magnitude is VR and minus j cap. So मैं vector wise ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। Now suppose man is holding an umbrella and moving with the velocity of Vm in east direction. Suppose I'm moving on a road and this is the velocity of man, ध्यान देना Vm. Suppose he is moving on east direction, so this is Vm I cap. So now according to law of vector, देखो अगर आप इसको ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो ये आपका जो लाइन आएगा ये आ जाएगा आपका VRM। ये क्या आएगा, VRM। VRM का मतलब ऐसे क्वेश्चंस में हमको VRM निकालना होता है, याद रखना। VRM मींस मैन इज ऑब्जर्विंग रेन, मैन इज ऑब्जर्विंग रेन, मैन ऑब्जर्वर है और रेन ऑब्जेक्ट है। अब ये रियल सिचुएशन भी है, सपोज आप स्टैंड कर रहे हो, रेन वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रही है, तो आप जैसे भीगोगे उसी तरीके से आप वेट होंगे। लेकिन अगर आप सपोज रन करोगे, व्हेनेवर यू रन, तो आपका जो बैक पोर्शन है वो गीला नहीं होगा ज्यादा, ध्यान रखना होगा, ये आपको पता है। तो रेन आपकी तरफ इंक्लाइंड हो जाएगी, ये वही बताया है। अगर आपकी वेलोसिटी है तो रेन, अगर सपोज आपकी वेलोसिटी नहीं है तो रेन वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रही है, लेकिन अगर आपकी कुछ वेलोसिटी है तो रेन आपकी तरफ इंक्लाइंड हो जाएगी। अगर आपकी तरफ इंक्लाइंड होगी तो आपके सामने से आएगी। तो ये वही सिचुएशन है। तो देखो इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं। यू आर ऑब्जर्विंग अ रेन, सो VRM which is VR minus VM. What is VR? It is minus VR j cap. What is VM? Which is VM I cap. As we are always writing I first, so minus VM I cap minus VR j cap. So this is our answer. This comes in a third quadrant. This answer comes in a third quadrant. VRM, देखो VRM थर्ड क्वाड्रेंट ऐसे ही आया है, एरो थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ आया है। सो अब क्वेश्चन आएगा, at which angle we have to hold an umbrella so rain does not fall on man if he is moving with some velocity. So ध्यान देना, सपोज अगर ये अम्ब्रेला को होल्ड कर रहा है, रेन इसको ऐसे फॉल होगा इसकी तरफ, समझ में है ना, ऐसे डायरेक्शन में। तो उसको अम्ब्रेला कैसे होल्ड करना पड़ेगा, ये अम्ब्रेला, ठीक है। तो अम्ब्रेला हम लोग कैसे करते हैं, पहले ऐसे ओपन करते हैं और फिर ऐसे आगे करते हैं, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्स, ये एंगल हुआ थीटा, तो ये एंगल हुआ थीटा, तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस निकालना है। सो एंगल इज विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, नॉट एक्स एक्सिस। सो दिस अपॉन दिस मींस minus VM upon VR. So with respect to y axis, at which angle man has to hold an umbrella? So he has to hold an umbrella as theta equal to tan inverse VM by VR. So आप इस फॉर्मूला को रट लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो कोई भी केस हो। अब सुनना ध्यान से, कंफ्यूजन कहाँ होता है इस क्वेश्चन में। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। इफ रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड सपोज डाउनवर्ड फॉल हो रहा है, तो यू हैव टू होल्ड एन, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसको तो माइनस जे कैप लिया, लेकिन अब ऐसा बोलेंगे कि पर्सन इज मूविंग इन साउथ डायरेक्शन, तो इसको जे कैप ले लेंगे या माइनस जे कैप ले लेंगे, तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है ना। देखो हर एक सिचुएशन में यहाँ डाउनवर्ड है, मतलब जैसे अगर ये प्लेन है तो वो रेन ऐसे मूव कर रहा है डाउनवर्ड, इधर ऐसे। अब आप सुनना, ये रेन है, मैन इस प्लेन पे है, वो ऐसे जाए ऐसे जाए ऐसे जाए, कहीं पर भी जाए, ऑलवेज रेन और मैन परपेंडिकुलर ही होंगे। तो सिचुएशन यही आएगी। तो एट विच एंगल टू होल्ड एन अम्ब्रेला हो, तो यही याद रखना, tan इनवर्स VM by VR। ये फॉर्मूला को याद कर लो, रट लो, ठीक है। Cram this formula that whenever at which angle man has to hold an umbrella so that rain does not fall on him,
he has to hold an umbrella at an angle of tan inverse Vm by Vr, where Vm is speed of man, Vr is speed of rain with respect to ground. ठीक है ना? As your man is observing rain, so we have to find out Vrm. ठीक है? Note it down, this question को लिख लो आप. देखो स्टूडेंट्स, अब इसमें एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है. मैं जस्ट आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि होपफुली आपने ये लिख लिया होगा. जैसे ये रेन है, तो अगर मैन की स्पीड है तो रेन उसकी तरफ इंक्लाइंड होता है. सो कहीं पे भी आप रन करो, रेन आपकी तरफ इंक्लाइंड होगा. ठीक है? सो इफ रेन इज फॉलोइंग सपोज एट एंगल अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल. सपोज ऐसा दे दिया है केस, तो अब इसमें एक क्वेश्चन पूछते हैं. देखो ध्यान देना. सपोज रेन इज फॉलिंग एट एंगल अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल. अगर ऐसा पूछा है, दैट मीन्स इस सिचुएशन में ये वर्टिकल लाइन है एंड रेन इज फॉलिंग लाइक दिस Vr. अब देखो, अगर मैन की इतनी ज्यादा स्पीड है, ध्यान रखना, इतनी ज्यादा स्पीड है, ये Vm है, तो रेन ऐसे दिखेगा उसको. बराबर समझ में आई बात आपको? अब अगर मैन की स्पीड मैंने कम करी थोड़ी, तो रेन ऐसे हो गया. मैन की स्पीड और कम करी तो रेन ऐसे हो गया. देखो ये हो गया, रेन ऐसे एंगल पे गिर रहा है. ठीक है? सो ये अब मैन की स्पीड होगी. क्लियर? सो क्वेश्चन पूछते हैं, रेन इज फॉलिंग एट एन एंगल अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल. सो फाइंड, या तो एट व्हाट वेलोसिटी or at what speed man has to run so rain appear perpendicular to him. ये क्वेश्चन. तो रेन उसको परपेंडिकुलर दिखना चाहिए. तो ये देखो, ये Vr है, तो ये Vr cos होगा, तो ये Vr sin होगा. तो Vm should be equal to Vr sin अल्फा. तो ये मैन की वेलोसिटी होनी चाहिए, Vm इक्वल टू Vr sin अल्फा. ये क्वेश्चन, ये आंसर भी याद कर लो आप लोग. ठीक है? सो ये रेन मेन प्रॉब्लम में ये दो टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, एक होल्डिंग अम्ब्रेला वाले और एक ये वाला क्वेश्चन. ठीक है? नोट इट डाउन. Now next type of example which is asked in relative velocity in 2D is basically, which is an example of river boat problem. ये रिवर की जगह आपको विंड भी बोल सकते हैं और बोट की जगह एरोप्लेन भी बोल सकते हैं, या रिवर मैन प्रॉब्लम हो जाएगा. ठीक है? रिवर बोट की जगह रिवर मैन भी हो सकता है. इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. देखो सिचुएशन क्या है, यहाँ पे अपन उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं. सपोज दिस इज अ रिवर, दिस इज अ विड्थ ऑफ रिवर. ये ओरिजिन है. सिचुएशन हम ऐसा लेते हैं 0,0 which is origin, and this is the width of river which is 0,w. W is width of river and river is flowing with some velocity. ठीक है ना? अब देखो, जैसे मैं ऐसा बोलूं, this is Vc which is velocity. अब कार is moving on a ground, तो मैं बोलूं Vc is 50 km/h, means velocity of car with respect to ground होता है, means Vc minus Vg होगा. velocity of ground तो क्या होता है? 0 होता है. ऐसे ही अगर मैं वेलोसिटी ऑफ बोट बोलूं, तो बोट किस में रहता है? रिवर में. तो VBR होगा, तो VB माइनस VR होगा. आप समझो मेरी बात. वेलोसिटी ऑफ कार बोलते हैं तो कार मूव्स ऑन अ रोड, बट रोड इज स्टेशनरी. बट वेलोसिटी ऑफ बोट में बोलूं तो बोट इज मूविंग ऑन रिवर. सो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर होगा. तो इसलिए उसमें क्या लिखते हैं अपन? VBR. ठीक है? तो कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछें, वेलोसिटी ऑफ बोट इन रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और या वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इट इज ऑलवेज VBR. नोट इट डाउन. ठीक है ना? इट इज ऑलवेज VBR. अब देखो सिचुएशन कैसा है, हम एक आइडियल सिचुएशन बनाते हैं, उस पे से हम लोग केसेस पढ़ेंगे, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं. सपोज दो जन है, एक जन यहाँ ग्राउंड पे है और एक जन बोट लेके यहाँ पे जा रहा है इस डायरेक्शन में. दिस इज अ वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, सो VBR हुआ. ठीक है ना? ये डायरेक्शन में गया, इसके रिस्पेक्ट में थीटा एंगल पे गया. ठीक है? एक सिचुएशन बना रहा हूं मैं, आपको आइडिया आएगा. तो अगर मान लो ये पर्सन, यहाँ रिवर स्टिल होती, मतलब तो
ये सीधा यहीं पहुंच जाता है इस पॉइंट पे, बट रिवर इज फ्लोइंग विद सम वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर विच इज वी आर। सो ये आदमी को कैसा लगेगा, ये तो ऐसे ही जा रहा है, लेकिन जो ग्राउंड से देख रहा होगा ना उसको ये ऐसे जाता हुआ दिखेगा, ऐसे, और वो कहाँ पहुंच जाएगा, वो इस एंड पे पहुंच जाएगा। दिस इज योर वी बी, देखो वो इस एंड पे पहुंच जाएगा, और इसको बोलते हैं यहां से यहां, इसको बोलते हैं ड्रिफ्टिंग। क्या बोलते हैं इसको, ड्रिफ्ट। और ये जो पॉइंट होगा इसको हम बोलेंगे x, w, ठीक है। तो ये आपका O पॉइंट हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। सो AB इज ड्रिफ्ट बेसिकली। सो अगर देखो ये रिवर की वेलोसिटी नहीं होती, इसको जीरो कर दूं तो ये ऐसे यहाँ पहुंच जाता है, लेकिन रिवर की वेलोसिटी है तो ये इस आदमी को जो बोट में, उसको तो लगता है वो ऐसे ही जा रहा है, लेकिन वो जा ऐसे रहा होगा, ग्राउंड से देखोगे तो वो यहाँ पहुंच जाएगा। सो अपन चेक करते हैं, देखो VBR क्या है, यहाँ पे VR क्या है, हम पहले लिख देते हैं क्या क्या चीज है। VR इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, VBR is velocity of boat in still water, or velocity of boat with respect to water or with respect to river, और velocity of boat in river, सब एक ही बात होती है, ठीक है। and VB is velocity of boat with respect to ground, मतलब ग्राउंड से कोई उस बोट को देखे तो कैसा दिखेगा उसे, ठीक है। सो वी नो द रिलेटिव वेलोसिटी फॉर्मूला, वी नो दिस, VBR can be written as VB minus VR, vector wise we can write down like this. So VB can be written as VBR plus VR with the help of, बराबर ना। So ये लॉ ऑफ एडिशन भी ओबे करता है, देखो VB join the tail of one to the head of last, so VB is a resultant of this two। तो ये आ गया आंसर। अब देखो आपको याद कैसे करना है, देखो शॉर्ट में ये लिख दिया आपने, जैसे रेन और मैन प्रॉब्लम में आपको VRM निकालना था, रिवर बोट प्रॉब्लम में आपको VB निकालना होता है। VB ग्राउंड से कैसा दिख रहा है बोट, ठीक है। सो VBR के दो कंपोनेंट होंगे यहाँ पे, VBR के दो कंपोनेंट होंगे, एक देखो VBR cos, VBR sin, cos अपवर्ड डायरेक्शन में और sin इस डायरेक्शन में, तो वो मैं लिख देता हूँ VBR cos अपवर्ड डायरेक्शन मतलब j कैप, और VBR sin माइनस i कैप डायरेक्शन में, और रिवर कौन से डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड VR, और वो x एक्सिस में है, सो VR i कैप। सो i कैप सब साथ में लिख दो, तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, VR माइनस VBR sin थीटा i कैप प्लस VBR cos थीटा j कैप। अब आपको क्या करना है, ये वाली फॉर्मूला को फास्ट याद रखना है, क्रैम करना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है ना। तो अभी मैं इस पार्ट को रब कर दूंगा, आप इसको लिख लो। फास्ट याद कैसे करना है, देखो ध्यान देना, VB निकालना है, VB इज VBR प्लस VR, तो x एक्सिस में दो कंपोनेंट है, एक VR i कैप और VBR sin माइनस i कैप। तो आपको फास्ट क्लिक होना चाहिए, अच्छा VR माइनस VBR sin थीटा i कैप, और y एक्सिस में एक ही कंपोनेंट है VBR cos, तो प्लस VBR cos थीटा j कैप। इसकी प्रैक्टिस करो आप, ठीक है ना। x में दो कंपोनेंट है ओवरऑल VB के, ठीक है ना, VR माइनस VBR sin थीटा i कैप, और y में एक ही है VBR cos थीटा j कैप। तो होपफुली आपको ये फॉर्मूला याद हो गई होगी, इसे लिख लो आप लोग वीडियो को पॉज करके। अब देखो मैं इस फॉर्मूला को, तो फॉर्मूला कैसे फास्ट लिखना है आई थिंक वो आपको आ गया। तो सिचुएशन देखो मैंने भी फॉर्मूला रब कर दी, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, तो आपको ख्याल रहेगा कैसे लिखना होता है। देखो मैं फास्ट लिख देता हूँ फॉर्मूला, मुझे जो याद करना है VB, तो इस VB इज VBR प्लस VR, सो इट हैज टू कंपोनेंट, एक x एक्सिस में VR माइनस VBR sin थीटा i कैप प्लस VBR cos थीटा j कैप। तो इस सिचुएशन की ये फिगर हो गई, ये इक्वेशन हो गई, हो गया फास्ट। अब देखो इसमें क्या क्या पूछते हैं, आपको क्या पूछेंगे, एक बार इक्वेशन बना लेने का। अब इसमें फर्स्ट आपको पूछेंगे क्वेश्चंस, अब ये क्वेश्चंस ही हैं, टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर, कितना टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में। तो रिवर को ऐसे क्रॉस करना है, तो हम क्या करेंगे, y एक्सिस मोशन लेंगे, सिर्फ y एक्सिस मोशन, ठीक है। सो y एक्सिस मोशन में
टाइम कैन बी रिटन है, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, बराबर ना, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी में वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो टाइम कैन बी रिटन एज डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। एक्स का डिस्प्लेसमेंट तो एक्स की वेलोसिटी, सॉरी y का डिस्प्लेसमेंट तो y की वेलोसिटी, बिकॉज y एक्सिस मोशन है। बोट यहाँ थी, रिवर उसको यहाँ पे ड्रॉन करके लेके गई, बोट जाए ऐसे रहा था बट पहुंच यहाँ पे गया, बट उसकी y में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, y में यहाँ 0 था और w, तो y में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है w। y की वेलोसिटी कितनी है, ये रही y की वेलोसिटी, vvr cos थीटा। ये आ गया आपका टाइम टेकन टू क्रॉस अ रिवर, हो गया क्वेश्चन, w अपॉन vvr cos थीटा। अब क्वेश्चन में ऐसा पूछते हैं, ध्यान रखना, जैसे एज अ पर्सन, ठीक है ना, एज अ पर्सन आप या तो बोट रिवर में चला रहे हो, ठीक है, अब आप बोट एकदम फुल स्पीड कर दी है, बोट इज एट अ हाई स्पीड, ठीक है ना, अब उससे ज्यादा यू कैन नॉट इंक्रीज द स्पीड ऑफ बोट, सपोज आफ्टर दैट, सो वीबीआर इज कांस्टेंट, यू कैन नॉट इंक्रीज वीबीआर, विड्थ ऑफ रिवर इज आल्सो कांस्टेंट, you can I have to reach as soon as possible on the opposite side of this river, so you cannot change w also, but you can change theta, you can go like this, either like this, or you can change theta. So minimum time to cross river, अब क्वेश्चन आता है minimum time to cross river, अब ऐसा क्वेश्चन आएगा, fast as you have to मिनिमम टाइम टू क्रॉस रिवर, सो वो टाइम मिनिमम किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जब ये थीटा डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा, डिनोमिनेटर कब मैक्सिमम होगा, जब कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होगी, कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, बोलो 1, कब होगी 0 डिग्री, दैट मींस w अपॉन vvr, तो ये आंसर आ गया w अपॉन vvr, मींस उस आदमी को बोट को रो कैसे करना पड़ेगा 0 डिग्री पे, मतलब ऐसे, सो दिस इज अ वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, this is the velocity of river and this is the velocity of boat, so he has to row boat perpendicular to the flow, बराबर ना, फ्लो ऐसे है तो परपेंडिकुलर टू द फ्लो, 90 डिग्री नहीं लिखना, थीटा 0 है, देखो थीटा 0 है बट फ्लो के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, ये फ्लो के परपेंडिकुलर है, दिख रहा है आपको, तो ये चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, whenever you have to cross a river fast in a minimum time, what is a minimum time, w upon vbr। अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, ये vbr नहीं दिखते, जैसे विड्थ ऑफ रिवर दे दिया 2 किलोमीटर फॉर एग्जांपल, या 200 मीटर दे दिया, ठीक है, बट vb और vbr नहीं दिया, ठीक है, अब आपको ऐसा दिया है vr गिवन है एंड vb गिवन है, बट vbr गिवन नहीं है, तो क्या करोगे, तो आप vbr को ऐसा मत लिख देना vb माइनस vr, ये वेक्टर वाइज नहीं है, वेक्टर वाइज तो ऐसे लिखा हुआ है, आपको कैसे लिखना है, ये देखो vb, ये देखो पाइथागोरस बना इस सिचुएशन के लिए, तो vb स्क्वायर कैन बी रिटन एज vr स्क्वायर प्लस vbr स्क्वायर, सो व्हाट कैन वी राइट डाउन अबाउट vbr स्क्वायर इज vb स्क्वायर माइनस va, और इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने का, समझ में आई बात आपको, सो ये चीज ध्यान रखना, मिनिमम टाइम टू क्रॉस रिवर पूछा हो तो w अपॉन vbr क्रैम कर लेने का, और vbr दिया हो तो कोई सिंपल सा लॉजिक, लेकिन vbr नहीं गिवन है, vb और vr दिया है, तो vbr कैसे निकालोगे, ये डायग्राम से, vbr ऐसे, vr ऐसे, vb ऐसे, तो पाइथागोरस थ्योरम से याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक एग्जांपल हुआ, इसको लिख लो आप लोग, ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ, ये वाला ये एग्जांपल था, मिनिमम केस है, इसको केस करके लिख लो आप, यहाँ पे केस लिख देता हूँ तो आपको याद रहेगा, दिस इज केस, एन एग्जांपल है, ठीक है, सो मैं इसको रब कर देता हूं, अब देखो, अब आपको इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि ड्रिफ्ट कितना होगा, ड्रिफ्ट मतलब वो जहां से उसने मोशन स्टार्ट किया था उसके ऑपोजिट से ये ड्रिफ्ट होता है, ड्रिफ्ट कितना होगा, सो टू कैलकुलेट ड्रिफ्ट, सो ड्रिफ्ट के लिए अपन एक्स एक्सिस मोशन लेंगे, क्योंकि एक्स में ही हुआ है, दैट इज vx इंटू टी, vx कितना है आपके पास, वी आर माइनस vbr साइन थीटा, t कितना है w अपॉन vbr cos थीटा, हो गया, बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या पूछते हैं पता है आपको, इसका केस पूछते हैं, केस है मिनिमम ड्रिफ्टिंग का, मिनिमम ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है टू रीच
एग्जैक्टली ऑपोजिट एंड, मतलब अपन को एग्जैक्टली ऑपोजिट एंड पहुंचना है, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, x को 0 पुट कर दो। तो इसमें अगर आप x को 0 पुट कर दोगे तो प्रोडक्ट इज 0 व्हेन आइदर वन ऑफ देम इज 0, सो दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0, सो vr minus vvr sin theta equal to 0, so sin theta can be written as vr upon vvr। इस एंगल पे अगर बोट को रो करोगे ना तो आप एग्जैक्टली ऑपोजिट एंड पे पहुंचोगे। मतलब सिचुएशन कैसी होगी डायग्रामेटिकली इस केस की, कि आप वर्टिकली से इस एंगल पे गए बोट को लेके, ठीक है, थीटा एंगल पे, ये रिवर की वेलोसिटी है vr, तो आपकी जो ये वेलोसिटी हुई विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो ये हो गई, विच इज बराबर। तो हो गया। अब एग्जैक्टली अब इसका पाइथागोरस क्या बनेगा बताओ? vvr स्क्वायर इक्वल टू vr स्क्वायर प्लस vv स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम बना। तो अगर आपको क्वेश्चन में vr दिया है, vvr दिया है, तो डायरेक्टली कौन से एंगल पे बोट को रो करना है, लेकिन मान लो vr और vb दिया है तो vvr यहां से निकाल दोगे, vr स्क्वायर प्लस vvr स्क्वायर अंडर रूट। समझ में आई बात आपको? तो ये केसेस ऐसे याद रखने हैं आपको, ध्यान रखना। ये जो भी फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूला कैसे निकाला है वो केस याद रखना, फास्ट निकालना आना चाहिए, फास्ट कैसे निकाला, ये इक्वेशन कैसे फास्ट लिखी वो पता होना चाहिए। उसके बाद आपने ये देखा टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, तो टाइम टेकन के लिए y एक्सिस मोशन, सो w अपॉन vvr cos थीटा। मिनिमम में थीटा आपका, मिनिमम में जो होता है cos थीटा 0 होना चाहिए, तो आपका आंसर आ गया w अपॉन vvr, ठीक है ना। उसका राइट एंगल क्या बनता है वो पता होना चाहिए आपको, ऐसा जो राइट एंगल ट्राइंगल बना था वो फास्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए। ड्रिफ्ट के लिए क्या हुआ, x एक्सिस मोशन, x वेलोसिटी इनटू दिस टाइम, लेकिन उसमें ड्रिफ्ट 0 का केस पूछते हैं, ये ऐसा नहीं पूछेंगे, ड्रिफ्ट 0 पूछते हैं। ड्रिफ्ट 0 कब होगा, तो साइन थीटा इज vr अपॉन vvr, ठीक है ना। और उसका ये ट्राइंगल पता होना चाहिए, सिंपल। ड्रिफ्ट 0 मतलब आपको फिगर बनाने आनी चाहिए। अच्छा ड्रिफ्ट 0 है तो मतलब मेरे को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सामने पहुंचना है, तो मेरे को बोट ऐसे लेके जानी पड़ेगी, तो ये मेरा vr होगा, हो गया। अगर मैं साइन थीटा, ये थीटा हो गया, साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, vr अपॉन vvr हो गया, vr अपॉन vvr, सिंपल। क्लियर स्टूडेंट्स? तो कितना सिंपल है। और अगर जल्दी पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है तो बोट को ऐसे लेके जानी पड़ेगी, vvr, रिवर ऐसी है तो मेरे को यहाँ पे पहुंचा देगा, दिस इज योर vb, ये हो गया, सिंपल। तो इस ये राइट ट्राइंगल किसका बना आपका, ड्रिफ्ट 0 का, और ये राइट ट्राइंगल किसका बना आपका, मिनिमम टाइम का, ठीक है ना। तो w अपॉन vbr cos थीटा याद रखना है, मिनिमम टाइम के लिए cos थीटा ये 0 हो जाएगा, तो w अपॉन vbr हो गया। तो होपफुली आपको समझ में आ गया। देखो ये क्वेश्चंस ही हैं, इसको लॉजिकली करने होते हैं, तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से याद रखना है। मैंने आपको वो भी बता दिया, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली, ठीक है। सो इसे नोट डाउन कर लो, तो ये अपना 2D भी कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, देखो ऐसे विद क्वेश्चन, यही क्वेश्चंस आते हैं, ये चीज आप ध्यान रखना, क्वेश्चंस यही आते हैं, यही पूछेंगे vr vbr में से, जैसे थीटा vr vbr, इनमें से 3 में से कोई भी 2 चीज गिवन होगी, एक निकालनी होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आप लिख लो, इसको नोट डाउन कर लो। So students, now we go through the one page of this 2D topic. So first of all, we have gone through the oblique projectile motion. In oblique projectile motion, we have thrown a ball from a ground at an angle of theta with the velocity of u. Okay, so this velocity has 2 components, one on x-axis which is u cos theta, one on y-axis which is u sin theta. Clear? So first of all, you have to draw the figure that in your one page, that you have to also mention here that this is your u cos theta and this is your u sin theta. Okay, so first equation which we know is about the trajectory equation. Trajectory equation basically shows a relation between the position x and y. If you change your position, if x is changing, so y is also going to change, and all other things are constant here, because once you throw a ball, u is constant, theta is constant, g is constant, so x and y 2 variable equation is there, and this is a quadratic equation, so therefore ball will follow a parabolic path. So this equation is y equal to x tan theta minus half gx square upon u square cos square theta. Use of this equation is basically in 3 types of question. First, basically if your question is given, some quadratic equation is given, so you can compare
this equation with that quadratic equation, and with the help of comparison you can find out theta also, u, and u also. Okay. Then second type of question is basically you can use this equation if some equation is given, and if you substitute y equal to 0 in that equation, then this equation is useful to calculate range also. So x will give you range, as we have seen this type of question basically while studying theory. Okay, students. And the third application of trajectory equation is basically that type of question, that ball question. You have to cross that ball. Ball is thrown at an angle theta with the velocity of u, and it has been thrown in such a way that it just crosses a wall. So in that type of a question, we also use this type of a trajectory equations. As already we have discussed that type of a question. So if you, this x is basically a distance of ball from the point of projection, and y is height of a ball, and theta and u, out of this theta and u, one thing may be asked and one thing may be one data may be given, okay, in question. So this three types of question are there basically for this trajectory equation. Then we have gone through a time of flight. Just we have to remember for such questions that, you know, we have to remember the basic concept also, that how you have derived time of flight. For time of flight we are using y-axis equation, y-axis motion, and we are using equation s equal to ut plus half at square. Okay, so we can derive the time of flight formula, which is 2u sine theta by g. Clear? Then third is about the range. Range means what is the range of this projectile if it has been thrown at an angle theta with the velocity u. So what is the range of this projectile? So for calculation of range, even in such kind of a question, for calculation of range, you are using x equal to ux into t. So you should know what is the x velocity and time of flight. So your range comes out to be in projectile, in this oblique projectile, range comes out to be u square sine 2 theta by g. Then what are the condition in what are the cases in range which we have studied? First, when range is maximum. Range is maximum when theta is 45 degree. But if you throw a ball at different angle with same speed, okay, the condition is you have to throw a ball with the same speed at different angle, then range is maximum when theta is 45 degree. So answer comes out to be u square by g. Then the second condition is if two balls are thrown at a complementary angle but with the same speed, then range is same. Okay, then range is same. So r for theta and r for 90 minus theta, range comes out to be same, but their motion is different. One time of flight of both, one which has been thrown with the angle theta and another which has been thrown with angle 90 minus theta with same speed, the time of flight is different. So the product of time of flight comes out to be 2r by g. So this is very important question point of view. ध्यान रखना students. Clear? So यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था 1, 2 and 3 ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं. Suppose two balls are thrown with the same speed at a complementary angle. So you should know that this type of question will, is that means the product of time of flight is equal to 2r by g. Time of flight of first ball is 6 seconds. Time of flight of second ball is 4 seconds. What is range? 6 into 4, 24 into 10, 240 divided by 2, 120. So 120 is range. So fast calculation आपकी इससे हो सकती है. Then comes the maximum height of the projectile. What is the maximum height of a projectile? So for that you have to use equation v square minus u square equal to 2as, and answer comes out to be u square sine square theta by 2g. Okay. So here the main condition is when range is maximum, h comes out to be range by 4. ठीक है ना? This we have derived it. And also there is one condition that when range and height both are equal, then angle of projection is 76 degree or tan inverse 4. ठीक है? So ये भी आपको याद रखना है. When range and height both are equal, means projectile is thrown in such a way that maximum height is also equal to range, then angle at which that ball is projected is 76 degree or theta equal to tan inverse 4. And what is the instantaneous velocity? Instantaneous velocity is u cos theta I cap plus u sin theta minus gt j cap. So these are some important formulas. These are the one page which you have to daily revise. Okay, once you do questions also and all kind of after learning theory, you have to daily go through this type of one page. Okay, students, so that you cannot forget this important formula at the time of examinations. Then second was horizontal projectile. So how to remember the trajectory equation of horizontal projectile? Just you put here theta equal to 0, so answer comes out to be y equal to minus half g x square upon u square.
Then what is the time of flight? The time of flight comes out to be under root of 2h by g in horizontal projectile motion. So here there is an important question that one ball is dropped from the building and another is thrown horizontally with some velocity u. Which ball will reach ground first? Both ball will reach ground simultaneously, because time of flight of the ball which has been dropped is also under root of 2h by g, and which has been thrown horizontally, its time of flight is also under root of 2h by g. Then what is the range of that projectile which has been thrown horizontally? So range of that projectile comes out to be u under root of 2h by g. So these are the horizontal projectile. Three equations are there in which you have to cram these three equations. And then there was one typical example which we have studied, that if suppose this type of example are asked in examination, that from the building of height h, suppose if ball is thrown at an angle theta with the velocity of u, then if you have to find out time of flight, then you have to use equation s equal to ut plus half at square. So sy equal to uy plus half ay t square. What is displacement? Initially ball is in this direction, finally it is in the downward direction, so displacement comes out to be minus the height of building. Okay, if you are taking downward as minus and upward as positive, plus sign. Uy comes out to be, you know that according to this given condition, this is u cos theta and this is u sin theta. So uy is in this case is u sin theta plus t minus g and t square. So this way you can calculate the time of flight, as we have already discussed such type of question in our when we were studying theory. Okay, and then about the range. So range, you have to use equation ux into t. So ux is here, in this case it is u cos theta, and from here time of flight you have to substitute here. So you can also find out range. And what is the speed? How to calculate speed? So you have to first find out the velocity. Velocity is vx I cap plus vy j cap. So vx u cos theta I cap, plus for vy it is uy plus at. So uy in this case is u sin theta and ay is minus g into t. So how to calculate speed? Speed is magnitude of this. Okay, speed is the magnitude of this velocity. So these are some important formula which you have to remember to solve question of projectile motion. So we have already discussed this oblique projectile motion, horizontal projectile motion, and some typical case of projectile motion. So these are very important formula. आप इसको वन पेज को एक स्केचबुक में बना के रखना, तो होपफुली आपको ये डेली रिवीजन में याद रहेगा. ठीक है ना? जो जितने भी फॉर्मूला हमने पढ़ी है, काफी सारे क्वेश्चंस इसमें आ गए हैं. एक और चीज है, इन सम क्वेश्चन बेसिकली दे विल गिव यू time of flight and maximum height is asked in examination. They will give you time of flight and maximum height is asked in examination, or vice versa. They will give you maximum height and time of flight is been asked. So there is a direct relation between maximum height and time of flight. See, if you observe this formula, here there is u square sin square theta and here there is u sin theta. So from this you can write down that u square sin square theta from this equation can be written as 2gh. Okay, and u sin theta is nothing but 2 tg by 2. See here, u sin theta is tg by 2. So u square sin square theta can be written as t square g square by 4. बराबर, u sin theta can be written as t into g by 2. So t square g square by 4. So here there is a relation between time of flight and maximum height. Okay, so this is a direct relation between time of flight and maximum height. What is this relation? See, this will become 8, 1g will cancel out, so this will become 8 and 1g will cancel out, so 8h equal to t square into g. So this is the relation. Okay, this 4 into 2 8h, this g will cancel out, so t square g. So this is the relation between time of flight and maximum height. So इसको note down कर लो आप students. Now students, the next one page is of basically relative velocity in 2D. That is a river boat problem and rain wind problem. So in rain wind problem there are two types of a question which we have already discussed. First is about that at which angle we have to hold an umbrella so rain does not fall on us. Okay? So if suppose in this case
you have to first of all you should remember the case that this answer is for which type of case. In this case, rain is falling vertically downward. If it is falling vertically downward, so velocity of rain is minus vr j cap, and man is moving in this direction on road, and suppose man is moving in east direction, so vm I cap is velocity of man. So how rain appear to man? So we have to find out velocity of rain with respect to men. So we have to find out vrm. If we find out vrm, then it can be written as vrm can be written as vr minus vm. Okay, so at that your answer comes out to be this vrm comes out to be vr minus vm, so which is minus vr j cap minus vm I cap. So it can be written as minus vm I cap minus vr j cap. Okay, so this is basically vrm. Okay, so at which angle we have to hold an umbrella? So by default, whenever the question is asked at which angle we have to hold an umbrella, so that angle is with respect to vertical. So as we have to find out the angle with respect to vertical, so vm by vr. So you can also cram this formula that at this angle, that Vm by Vr, we have to hold an umbrella. That theta comes out to be tan inverse Vm by Vr. Clear, students? So first of all, this is very important formula. Then second, so you have to logically learn this formula. Okay, you have to learn logically that this Vrm can be written as minus Vm I cap minus Vr j cap, and answer comes out to be minus Vm by minus Vr. So it can be written as Vm by Vr. Second type of question is asked, this is very famous question, that if suppose rain is falling at some angle, that angle is alpha with respect to vertical, what must be the velocity of man so rain appear perpendicular to him? Okay, so as man increases his speed, so rain in this inclination angle will decrease, and at one stage rain will appear perpendicular to man. So that speed of man is vr sine alpha. Okay, so dhyan rakhna, remember this formula, Vm equal to Vr sine alpha. Or you can also remember this diagram also, that Vr is velocity of rain, this is velocity of man, so this is Vrm. Clear, students? So this is very important formula, that if rain is falling at some angle, so what must be the speed of man? So rain appear perpendicular to him. The next is river boat problem. So suppose this kind of situation is given, that river is flowing in east direction. This is a velocity of boat with respect to river, means velocity of boat in river at theta angle. Boat is moving with respect to river. Theta is an angle with respect to vertical, and velocity of boat is vb. Okay, so a person which is observing from ground, as he sees as he observe a boat, so according to the person on the ground, boat will move like this with respect to ground. Okay, and finally boat reach at this point. So first you have to find out what is VB. So you have to find out, after drawing this diagram according to this given situation, you must know what is VB. So VB can be written as VBR plus VBR. So here overall there are two components on x-axis. One is VR and one is VBR sine. So VR minus VBR sine I cap plus VBR cos j cap. So this way you can find out VB. So you have to remember in such a way that you can fast calculate what is VB. Okay. After finding out VB, you have to calculate what is how much time it will take to boat to cross river. So time taken to cross a river is time is distance upon velocity. So distance or displacement upon velocity. So displacement of y upon velocity of y. So displacement of y is, as initially boat was in this position, finally boat is at this position, so displacement in y is w, and what is the velocity of y? It is vbr cos theta. So you must remember this formula, time is equal to w upon vbr cos theta. Okay, students? Then this is a very important case. In most of the exam this case is only asked, that in minimum time we have to cross a river. So if we have to cross a river in a minimum time, then in which direction we have to row a boat? Whenever such question is asked that we have to cross river in a minimum time, we have to row boat perpendicular to the flow. See, this is a flow direction, so we have to row a boat perpendicular to the flow. So this angle theta will become 0. Therefore in this equation you have to substitute theta equal to 0. So answer comes out to be w upon vbr. So you can just remember this formula also. Whenever we have to cross a boat in a very short time, or we have to cross river in a short time, then T must be W upon VBR
theta is 0. Okay, but if in question VBR is not given, VB and VR is given, then we can write down VB square is equal to VBR square plus VR square. Therefore VBR square can be written as VB square minus VR square. ध्यान रखना. Okay student, so we have to row our boat perpendicular to the flow, so we have to row boat like this. So this is our VBR, this is the velocity of river, so this is our VB. Okay, so according to Pythagoras theorem, VB square can be written as VBR square plus VR square. So you have to remember this form, this diagram. Okay, suppose in examination VR and VB are given and VBR is not given, width of river is given, and you have to find out the shortest time to cross river. So answer comes out to be W upon VBR, and VBR can be written as VB square minus VR square under root of, बराबर, VBR can be written as under root of VB square minus VR square. Second, what is a drift? Drift means this is known as a drift. Okay, so first of all you know that for drift x is 0, तो ये फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है, and x is equal to vx into t. So x-axis velocity into time. From here we have substituted time. For drift to be 0, this is very important case. Substitute x equal to 0. X equal to 0 means product is 0. So product 0 होना चाहिए. Then x will be 0. So VR minus VBR sin theta equal to 0. So VR equal to VBR sin theta. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं, in which direction we have to row a boat so we reach exactly opposite end. Okay, मतलब मेरे को रो को कौन से डायरेक्शन में बोट को रो करना है कि हम exactly opposite end पे पहुंच जाएं. So sin theta can be written as VR upon VBR. So ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए आपको. क्लियर? इसमें एक चीज और है, ध्यान रखना, इन विच डायरेक्शन वी हैव टू रो अ बोट. तो हमको यहाँ से बोट को ऐसे रो करना पड़ेगा, रिवर हमको ऐसे ड्रिफ्ट करके लेके जाएगी, तो हम एग्जैक्टली ऑपोजिट एंड पे पहुंच जाएंगे. तो ये हमारा VB होगा, ये हमारा VBR होगा और ये हमारा VR होगा. सो पाइथागोरस थ्योरम अगर आप अप्लाई करोगे तो VBR स्क्वायर इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर. सो इफ इन एग्जामिनेशन VR and out of VR and VBR, VR and VB is given, so how you can find out VBR? With the help of this formula you can find out VBR. ठीक है ना. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें डायरेक्टली आपको ऐसा पूछ सकते हैं. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, शॉर्टेस्ट टाइम टू क्रॉस अ रिवर T इक्वल टू W अपॉन VBR. W गिवन होगा, VBR गिवन होगा, तो डायरेक्टली फॉर्मूला. W गिवन होगा, VB दिया होगा और VR दिया होगा, VBR नहीं गिवन होगा, तो ऐसे निकालोगे. ठीक है, इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं पहले. जस्ट वन पेज में कैसे लिखना है, फास्ट आपको आना चाहिए. अगर एग्जामिनेशन में भी ये चीज आपको फास्ट लिखनी है तो यही मोस्टली आपको इन नेट लेवल इस टाइप की ही थियरी देंगे आपको. ठीक है, तो यहाँ से ये चीज विद इन 10-20 सेकंड लिखने की आप प्रैक्टिस रखो. ठीक है, तो आपके क्वेश्चन बहुत फास्ट हो जाएंगे. दूसरा, अगर आपको ड्रिफ्ट पूछते हैं, ड्रिफ्ट 0 के लिए क्या कंडीशन है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू VR अपॉन VBR. ठीक है, दिस इज द कंडीशन, मींस वी हैव टू रो बोट एट दिस एंगल. VR और VBR में से अगर आपको VR गिवन है, VBR नहीं दिया है, VR और VB दिया है, तो VBR कैसे निकालोगे, इस तरीके से निकालोगे. ठीक है स्टूडेंट्स, सो होपफुली ये भी आपको समझ में आ गया होगा. ये भी आप वन पेज में लिख लो, पूरा फास्ट आना चाहिए, इसे ध्यान रखना. क्लियर स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन.